قدس ہے، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ کر یہ دن مناتے تھے۔ اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے یوم قدس کے تمام تقریبات اور جلسے منسوخ ہوئے۔ لوگوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اس دن کو یاد کیا۔ دیکھیے منیر حسین حرہ کی یہ خاص رپورٹ۔ انقلابی ایران کے بانی امام خمینی نے ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کو عالمی یوم قدس قرار دے کر دنیا والوں کی توجہ مسئلہ فلسطین کی طرف مرکوز کی تھی۔ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے گزشتہ 70 برسوں سے دنیا بھر کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں لوگ مظاہرے کرتے آئے ہیں۔ اس موقع پر قبلہ اول کی بازیابی اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اظہار برہمی کیا جاتا ہے۔ رواں برس لاک ڈاؤن کی وجہ سے یوم القدس کی تمام سرگرمیاں منسوخ کی گئیں۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے صحن اور اندرونی گلی کوچوں میں پوسٹر چسپا کر کے اس دن کو منایا۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اپنے رہبر کے حکم کے مطابق ہم نے اس کو منایا اور ہم نے زیادہ سے زیادہ اس میں آج سوشل میڈیا کا ہی استعمال کیا اور بھرپور طریقے سے سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اس فریضے کو نبھایا۔ محکمہ صحت کی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل لوگ سڑکوں پہ نہیں جا سکتے ہیں، جلوس وغیرہ نہیں نکال سکتے ہیں، لیکن اس بنا پر ہم نے بستیوں میں اپنے محلوں میں پلے کارڈز کے ذریعے سے مستضعفین ہیں ان کے ساتھ اس اظہاری یکجہتی کی۔ لوگوں نے لاک ڈاؤن کا احترام کرتے ہوئے یوم قدس منانے کے لیے سوشل میڈیا کا بھی سہارا لیا۔ مختلف طریقوں سے یوم قدس منانے اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی سے متعلق بیانات سوشل میڈیا پر تحریر کیے گئے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کا احترام بھی ضروری ہے اور جمعۃ الوداع یعنی یوم القدس کو منانا بھی لازمی ہے۔ ہم نے پھر بھی اپنا احتجاج درج کیا، کیسے؟ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے، انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے گھروں میں رہ کر ہم نے احتجاج بلند کیا، اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا۔ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اس فرض کو ہم نے آج بھی نہیں بولا۔ محکمہ صحت کے بتائے ہوئے احکامات پر احکام تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں ہی، اپنے بستیوں میں ہی، اپنے محلوں میں ہی ہم نے آج یوم قدس اس طرح سے منایا کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، پلے کارڈز کے ذریعے یوم قدس منا رہے ہیں، جو کہ بیت المقدس کی بازیابی کا دن ہے۔ طاغوتی نظام کے خلاف اظہار بیزاری کا نام یوم قدس ہے۔ واضح ہے کہ دنیا بھر میں عالمی یوم قدس انسانی یکجہتی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے منایا جاتا ہے۔ نیوز 18 کے لیے بیروا سے منیر حسین حرہ کی رپورٹ۔ ادھر ضلع بڈگام میں بھی یوم القدس کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر آئے تھے، مگر اس مرتبہ یہاں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی جلوس برآمد نہیں ہوا۔ یوم القدس کے حوالے سے انجمن شرعی شیعان جموں کشمیر کے اہتمام سے مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں بڑا جلوس برآمد ہوتا تھا، مگر وہ بھی اس بار منسوخ کیا گیا۔ ادھر سوشل میڈیا پر مختلف انجمنوں، علماء اور سماجی ورکروں نے اس دن کی مناسبت کے حوالے سے مہم چلائی۔ نماز جمعہ کے بعد ایک جمع غفیر اس جلوس میں شرکت کرتی تھی۔ اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کے حالات جو کورونا وائرس کے اثر سے ابھی ڈسٹرب ہو چکی ہے اور تمام مذہبی اجتماعات معطل ہیں، اپنی اس یکجہتی کا، اپنی سولیڈیرٹی کا اظہار ہم فلسطینی عوام کے ساتھ کرتے ہیں۔ جمعۃ الوداع پر یوم قدس کرگل میں بھی بنایا گیا۔ کووڈ لاک ڈاؤن کے چلتے اس بار ریلی نہیں نکالی گئی۔ فلسطینی کاز کی حمایت میں پوسٹر لگائے گئے۔ فلسطین کو آزاد کرنے کی مانگ کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بھی پوسٹر لگائے گئے۔ انجان مدرسہ اثناء عشری کرگل میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے IKMT نے فلسطینی کاز کے نعروں کو آگے لے جانے کا پیغام دیا۔ تمام انسانیت کے حقوق جہاں پامال ہو رہا ہے، ان سب کے حقوق کو بحالی کے لیے مستکبرین جہان کی نابودی اور ان کے خلاف اور مستضعفین جہان کی حمایت میں ہم ہر سال جس طرح سے پروٹیسٹ کرتے تھے، اس سال ہم نے یہ نہیں کر پایا۔ ان
कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। तो इस साल हमने ये तरीक़ा इख्तियार किया है। नाराबल में कायम होली मिशन स्कूल में मुख्तलिफ रियासतों से लाए गए 49 लोगों को क्वारंटीन की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद आज घरों को भेजा गया। इनमें तलबा भी शामिल थे। तहसीलदार नाराबल GM डार के मुताबिक इन लोगों का टेस्ट मनफी आया है। ये लोग जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। तहसीलदार नाराबल और इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर मागाम ने इन लोगों को हिदायत दी कि वो अपने घरों में भी एहतियाती तौर क्वारंटीन में रहें। हमारी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आई वो सिर्फ बस बाथरूम्स में आ गई, बाकी जो खाने का सिस्टम था बाकी सब बहुत सही था। जी हम इनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है, इन्होंने हमारा साथ दिया इन दिनों में। हम हमारे साथ यहाँ पे खड़े रहे, हर मुश्किल में हमारे इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहे, इसका हम बहुत ही शुक्रगुजार है इन सब से। खाने पीने का इंतज़ाम और बाकी जो बेड का सिस्टम मतलब कमरों में बहुत ही अच्छा सिस्टम था, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी लगी मुझे। और ऊपर से ये जो पार्क यहाँ सिस्टम, ऐसा लग रहा था कि हम क्वारंटीन में नहीं है कि हम पिकनिक में हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा मुझे, हम बहुत ही सेटिस्फाई इस सिस्टम के साथ और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये फैसिलिटी मुहैया करवाई। आज का ये जो ग्रुप है इसमें 49 पर्सन्स आ गए, जिनमें मोस्टली लेबर्स हैं 32 के करीब और 9 स्टूडेंट्स हैं और 6 अदर्स जो मतलब ताजर वाजर वगैरह होते हैं। ये नेगेटिव हैं, सब सर्टिफिकेट्स दे दिए हैं और गाड़ियों का भी हमने इनको इंतज़ाम किया है और उनको रवाना किया है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल में आज सैंपलिंग का अमल जारी रहा। करीब 17 सैंपल्स लिए गए। तवक्को है कि सैंपल के नतीजे 1-2 दिन में आ जाएंगे। एक ओहदेदार ने बताया कि तराल में अब तक 1000 के करीब टेस्ट किए गए हैं, जिनमें बेशतर मनफी साबित हुए हैं। 200 के करीब अफराद क्वारंटीन में रखे गए हैं, जिनकी सैंपलिंग अभी होना बाकी है। आज हमने RT-PCR सैंपलिंग की। आज हमने 17 सैंपल्स कलेक्ट किए, जिनमें ANC के ऑलमोस्ट 8 सैंपल्स है और कॉन्टैक्ट्स के 9 सैंपल्स हैं, जो ऑलमोस्ट 1-2 दिन में हमारे पास इनके रिजल्ट भी आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास क्वारंटीन सेंटर्स में अभी भी कुछ ट्रैवलर्स हैं जिनका टेस्ट होना बाकी है। टोटल तो है हमारे पास अभी क्वारंटीन में 201 पर्सन्स। सब जिला तराल में सरकारी लॉकडाउन पर लोग सख्ती से कारबंद है। अवामी हलकों ने ईद उल फित्र की आमद से कबल राहत देने की मांग की है। मरहलावार पर ढील देने की लोगों ने इंतजामिया से अपील की है। लोगों ने कहा कि वो अज खुद सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी करके कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे। उधर दुकानदारों ने भी लॉकडाउन ज़ाब्तों में ढील देने का मुतालबा किया है। दुकानदारन डील थोड़ा दितुक तित दीतन अस थो पाने सोशल डिस्टेंस तो अत मन लुकन त परेशानी वनकस तो दुकानदारन परेशानी। DC साहबस गुजारिश करन कि यथ पे कर गौर ताकि गरीब तबका गि खराब गन कह। गंदो भलीसा के क्वारंटीन सेंटर में एक हामिला खातून ने बच्ची को जन्म दिया है। बसरन भलीसा के रहने वाले इरफान खान और उनके हामिला अहलिया शाजिया बेगम को डाक बंगला चांगा में क्वारंटीन में रखा गया था। SDM गंदो का कहना है कि इन्हें खातून के दर्द ज़ेह की इत्तला मिली। इसके साथ ही SDPO गंदो के हमरा हामिला खातून को GMC डोडा मुंतकिल करने के इंतजाम किए गए। GMC डोडा पहुंचने से पहले ही रास्ते में खातून ने एक बच्ची को जन्म दिया। क्वारंटीन में रखे अफराद से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए गंदो इंतजामिया ने खातून और नौज़ायदा बच्ची के लिए हर किस्म की सहूलत को मुहैया किया। खातून की रिपोर्ट मनफी आने के बाद इन्हें घर रवाना कर दिया गया है। इंतजामिया ने नौज़ायदा बच्ची को कोरोना तबस्सुम नाम दिया है। यहीं पे मिल गया, बच्चे भी ठीक ठाक से फादर से मैं भी। तहसीलदार ने एजेंट साहब ने हर फैसिलिटी मुझे उधर मतलब पहुंचाई है। सब कुछ फैसिलिटी अच्छे तरीके से मिली, अच्छे ढंग से गर्म पानी दूध। हमारे लिए चैलेंज भी था कि उनको कैसे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। जो मदर को डाइट चाहिए थी वो भी अरेंज कराई, दूध हो गया, अलग चीज़ें होगी, हीटिंग सिस्टम हो गया। तो इस वजह से जो लोग खुश होके आज इनका शाम को हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव आ गया पूरी फैमिली का, तो आज हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं।
गांदरबल टाउन में डीसी शफकत इकबाल ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लॉकडाउन 4 के तहत इजाज़त दी गई तिजारती और दीगर सरगर्मियों का मुआयना किया। दुकानदारों सारिफिन की तरफ से ज़ाब्तों की पासदारी का जायजा लेने के लिए शफकत इकबाल ने यह दौरा किया। सालूरा में गोश्त ज़्यादा कीमत में फरोख्त करने की पादाश में एक मटन की दुकान के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। डीसी ने मोटरसाइकिल सवारों, गाड़ी मालिकान और तमाम को इंतबाह दिया कि अगर वसूलों की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। गांदरबल में दिन 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें और कारोबारी इदारे खुले रहने की इजाजत दी गई है। डीडीसी ने नागबल मार्केट एसोसिएशन के साथ मीटिंग की और एसोसिएशन के सदर को हुक्म दिया कि वो तमाम ज़ाब्तों पर अमल आवरी को यकीनी बनाएं। उधर कुलगाम में आइसक्रीम फैक्ट्री मालिकान ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि उनको फैक्ट्री चलाने के लिए इजाजत दी जाए। इनका कहना है कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में रियासत के बाहर से आए आइसक्रीम फैक्ट्री वाले अंदरूनी रियासतों से आइसक्रीम की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। इनका कहना है कि इन्होंने बैंकों से जो कर्जा लिया है वो माफ किया जाए। उधर जिला इंतजामिया तहसीलदार ने फैक्ट्री मालिकान से मीटिंग भी तलब की। इसमें यह फैसला किया गया कि जल्दी ही कोई फैसला लिया जाएगा। माल बाकी स्टेटों पे माल सानी स्टेटस मज कलगमस मज एजेंसी 2-3 मतलब एजेंसी तिमन कन्न खतर मतलब तम तन माल निबरम माल ये कन्न यी अगर अस दीहन थोड़ा गाइड वन तहत अस वन यमो रूलो हिसाब टेस्ट कर रूलो तहत वन तमो रूलो तहत कर बैंक कर्ज अगर इंटरेस्ट कर माफ या बैंक लोन कर थोड़ा माफ सह सान खतर जान गुजारिश कर डी साहबस कि अम फैक्ट्री यल ग तम रेडजोन के बाहर तम यल और ये माल सैनिस कलगमस मज राजस्थान पे माल वारिया एजेंसी चलान माल अगर तिम इजाजत दिन क्या दिन इजाजत कर्ज मतलब बैंक कर्ज अगर माफ गुजारिश है। समरकंद से लाया गया समावार हूँ, दुख सुख